Welcome in the class. In the previous classes, we were describing the Newton-Raphson method of fluid flow study. In the Newton-Raphson method, we have seen it seems to be very complex because the Jacobian size of the Jacobian matrix was very big. This large size was there. It was the Jacobian matrix, and we know this is the Jacobian matrix. These are the delta 2, delta 3, delta r, and these are the power angles which are to be calculated at each bus. Similarly, voltage is Vm plus 1, voltage at bus number m plus 1, voltage at bus number n. These are to be calculated. Means in the Newton-Raphson method, we have seen the first bus is the slack bus, 2 to m are the PV bus, and rest m plus 1 to n are the PQ buses. So size of this matrix become very large, and not only that, each element if you see, it is a derivative of the power equation. This is a power equation P, this is a power equation for Q, it is derivative of delta 2, so these are a diagonal and off diagonal elements. Similarly, derivative of P with respect to voltage, and calculation of the partial derivation of such a large number and taking the inverse. And finally, this is only the one iteration. Doing it repeatedly, this become very cumbersome to find out the unknown value. That's why at the later stage, what we did? At the later stage, we have derived the formulas. This is called the H, this is N, this is J, this is L. We derived the 8 formulas. One formula for diagonal element for this, one formula for diagonal element of this, diagonal of this, diagonal of this. Then off diagonal like this, there were 8 formulas. On the basis of 8 formulas, you can calculate these values. Now, later on, we also described, in the previous class, we also described whatever we do, even if this, say for example, size of this is 90. So, in place of 90 into 90, 8100 terms, 8100 terms can be calculated on the basis of 8 formulas. Even then, that is difficult. So now we further simplify. We want to further simplify it with some our assumptions that we, or not actually assumptions, these are the truth, that P, the active power of the system, mainly depend upon the power angle. If you study the stability analysis, or you might have studied in the power system 1 class, that power angle is mainly dependent upon the, if you want to draw more power, electrical power, the power angle is to be high. So P, active power injected at an bus, depends upon the power angle, and it really depends upon the voltage. P depends upon the voltage. Dependency of the P on the voltage is very less. Similarly, the dependency of Q is with voltages. Means if the voltage is high, voltage is more than the required, more than the normal value, it means the reactive power demand is less. So it is mainly depend upon the reactive power. And alternatively, we can say dependency of P on the voltage is very limited, dependency of Q on the delta is very limited. So if we say P don't depend upon the delta, P don't depend upon the voltage, then dP by d voltage, this will be 0. This whole matrix will be 0. Similarly, if we say Q don't depend upon the delta, then this will be 0. If this matrix is 0 and this matrix is 0, then this becomes further simplified. Means P will be dependent upon this with this. So this finally, if we take this, the Jacobian matrix will be like this. This Jacobian matrix has been converted into the one complete matrix, one complete equation has been converted into the 2 small matrices, 2 small equations. So this becomes the simplified one. Is this simpler than the previous one? Solving these 2 equations are simpler than solving that one which was the very big equation, very large equation. So now further, now
further we want to further simplify this. dp by d delta, what is this? Diagonal and off diagonal element. If we want to find out this, so this equation, do you remember? Complex power of s is given by pi minus jqi. It is a bi e to the power of j delta i. This equation, do you remember? This is the equation for injected power at bus number I. So what we will do, to find out this, we have to differentiate this equation with respect to delta. If you differentiate this with respect to delta, ये देखिए, ये delta, where is the delta? 1 vi delta is here, and here is also p is equal to 1, 2, 3, 4, and there will a when I is equal to p, then it will be the here delta p. Other than when p is equal to 1, differentiation of this will be 0. When other than p, when it is 1, 2, 3, this will be 0. Otherwise, so everything will be 0. Only when I is equal to p, then only this value will come. So if you differentiate this with respect to delta, so this p is equal to 1 to n, or 1 to n will be deleted, and only if you see e power j delta I, derivative of this is equal to this will be the same as if you take the derivation of this. Okay. Now, if you take the derivation of partial derivative of this with respect to delta p, so what will be the yip will be yip vp, and derivative of e power j delta p minus delta I. Derivative of this will be the क्या होगा? J times of this. ये तो होगा. Derivative of e to power x is the e to power x, and derivative of e to power j into x is equal to j times e to power jx. So derivative of this will be j times of same e to power delta p minus delta I. Here in next assumption we are taking it delta p minus delta I is equal to 0. If we assume the power angle of all the buses are in the same range, so difference will be 0. So this become e to power 0 is equal to 1, and if we write the magnitude of this is vi, magnitude of vp is this. By ip, in place of by ip we can write conductance plus a substance. So this is the now what is the real part of this? Del p by del, here you see 2 and 3, I and p. This represent the off diagonal, means the real part of this equation represent the off diagonal element. Okay, so real part, इसका real part क्या होगा? If you multiply j into j here, it will be minus, means vi vp into capital VIP with minus sign. It is the real part which is equal to HIP. तो ये हमारा HIP आ गया, means ये देखिए, this is the HIP. सही है. और ये बस इतना ही समझने की जरूरत है. यहाँ पे देखिए इट इज HIP, and if you see we have earlier or yesterday we derived this HII is this. ये पहले टाइप किया हुआ है मैंने in the last to last lecture. This is the HII. If we assume in case of a active power, when we are dealing with the active power, as I told, it is not dependent upon the Q. So if we don't consider Q, so HII is equal to this. So HII can be written. Remember this. इसको उससे कंपेयर करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको रिमेंबर करिए. HII is minus VI square into VII. इसको ध्यान से देखिए. HII is equal to minus VI square HII square. और जो आपका निकल का आया है ये minus VI VP HIP है. Now you consider, please see these two equation very carefully. अगर आप इसको देखेंगे, in place of the equation are going to be very simple. So just you see, if you in place of P, if you write here I, P की जगह आप I लिख दें तो क्या होगा? VI square VI into VI square and VII. Getting this point? Means P की जगह I लिख दें तो ये फॉर्मूला बना. और HII आपने देखा था, मीन्स डायगोनल एलिमेंट देखा था, उसका भी यही फॉर्मूला है. मतलब क्या हुआ? दोनों फॉर्मूले आपको सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं है.
मतलब HII के लिए एक फार्मूला और HIP के लिए दूसरा फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ओनली वन फार्मूला इज सफिशिएंट, दैट इज दिस। मतलब P की जगह I रख देंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, I नहीं रखेंगे तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट भी आ जाएंगे। मतलब द सेम फार्मूला विल गिव बोथ diagonal and off diagonal element of this matrix, diagonal and off diagonal elements of this matrix, okay? और ये क्या था आपको ध्यान होगा, HNJL, ये क्या था L। अगर आप उसमें देखेंगे जैकोबियन मैट्रिक्स में देयर वर 4 पार्ट, फर्स्ट वाज द HNJL and this was the L, so LII and LIP, and again in the previous class if you see LIP is nothing but HIP, LIP और HIP बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके लिए भी फॉर्मूला आप सेपरेटली याद रखने की जरूरत नहीं है, द सेम फॉर्मूला विल वर्क हियर आल्सो, क्योंकि HIP इज इक्वल टू द LIP। तो दोनों में, इसमें और इसमें सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया, चाहे डायगोनल एलिमेंट हो चाहे ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी के लिए देयर आर 2 इक्वेशन एंड इन बोथ द इक्वेशंस द वन फार्मूला विल बी देयर। एंड व्हाट इज दैट फार्मूला, ओनली दी, पहले क्या थे 8 फार्मूला थे आपके, अब एक ही फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट फार्मूला इज, यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन फार्मूला एंड दैट इज गिवन बाय दिस, दैट इज गिवन बाय माइनस VIPP VIP, ओके। दोनों कन्वर्ट हो गए, एक फॉर्मूला बन गया। नाउ यू पुट दोज, इफ यू पुट इनटू दैट, ये क्या था, अब यहाँ पे ये जो था ना, ये H11 H12 लाइक दिस, H1n H21, तो इसमें इसी फॉर्मूला में I और P, फर्स्ट रो I की जगह फर्स्ट लिख दें और P की जगह 1 2 3 लिखें तो ये आ जाएगा, I की जगह 2 लिख दें और P की जगह 1 2 3 लिखें तो ये आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसमें यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क। अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? तो इसमें देखिए, दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाई, दिस V2, ठीक है। ये जो वोल्टेज है V2, so it means if you take this V2 common and you can divide it here, ये C से तो आ रहा है, similarly take it V3 common and divide it here, and this equation, you remember this equation and compare with this, इसको और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे then the same, this V2 has been taken here and this V2 V3 V4, ये वाला V2 V3 V4 they are taken here diagonal elements, so this is become, in comparison to that, this become further simplify. Now further what we are going to do, we are just going to consider the voltages of all the buses are nearly same. So if the voltages are nearly same, we can consider this as identity matrix. अगर ये identity matrix हो गया, then it become the again very simple, ये बन गया। अब जो आपको जैकोबियन मैट्रिक्स कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था, अब देयर इज नो फार्मूला। अब देखिए यहाँ कोई वो भी फार्मूला नहीं रह गया, जो एक फार्मूला आपने याद किया था, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर इवन दैट फार्मूला, क्योंकि अब इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू आ गई। व्हाट इज V22 V23, ये क्या है, V22 V23 ये क्या है, व्हाट इज दिस, नहीं जैकोबियन तो खत्म हो गया ना, अब ये क्या बचा, ये देखिए यहाँ पे जो BIP, ये क्या है, और ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, if you see this here, ये कहाँ से आया है, YIP, यहीं से तो आया है। तो what is YIP है क्या, ये YIP क्या है, क्या है बता,
ith रो ये कॉलम एलिमेंट ऑफ y बस। तो ये ith रो ये कॉलम एलिमेंट ऑफ y बस है। और ये फिर क्या है, ये कंडक्टेंस है, उसकी ससेप्टेंस है। VIP क्या है, ये कैपिटल VIP ये क्या है, पकड़ने क्या कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस है ना। कंडक्टेंस तो उसकी जरूरत नहीं है, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में कंडक्टेंस रियल पार्ट के साथ चला गया, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज कैपिटल VIP, ith रो ये कॉलम एलिमेंट ऑफ व्हाट, बड़ी करो छोटी जो y बस था, y बस में ही दो चीजें थी, एक कंडक्टेंस था एक ससेप्टेंस था। तो y बस में से अगर आपने कंडक्टेंस हटा दो, केवल ससेप्टेंस रहने दो, एक मैट्रिक्स मतलब आपका जो ये दिस इज नथिंग बट, नाउ यू सी हाउ सिंपलर इट इज नथिंग बट y बस सिंप्लीफाइड y बस में से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, we remove the first row and first column element of the y bus, then the real part, उसमें कंडक्टर और ससेप्टेंस था, then we remove the real part। तो जो बच गया that is the this matrix, this is called the ससेप्टेंस मैट्रिक्स। ये ससेप्टेंस मैट्रिक्स हो गया। ये कैसे निकालते हैं, y बस निकालना तो आपको पता ही है, प्रैक्टिकल भी किया है, न्यूमेरिकल भी किया है, थ्योरी भी समझा है। तो y बस निकालना आपको पता है। y बस में से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट हटा दिया, उसके बाद उसकी कंडक्टेंस भी हटा दो, तो जो बच गया दैट इज द ससेप्टेंस मैट्रिक्स। तो वो तो एंड दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। उसमें क्या था, हर इटरेशन जैकोबियन एक तो बड़ा भी था, उसके अलावा हर इटरेशन में उसकी वैल्यू चेंज भी हो जाती थी। अब आपको चेंज भी नहीं होना, ये वैल्यू फिक्स हो गई। और ये y बस से भी ज्यादा सिंपल हो गया, क्योंकि y बस में तो आपका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होते थे, तो उसका इनवर्स लेना मुश्किल पड़ता था। अब आपको इनवर्स वगैरह लेना भी बहुत सिंपल होगा, क्योंकि ये ओनली देयर इज नो, इसमें नो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये आपका, अब देखिए अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 निकालना है। अगर आपका कुछ PQ बस है कुछ PV बस है, तो जो PQ और PV सभी के केस में आपको डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा निकालने के लिए ये y बस निकालना तो सिंपल ही है, y बस से आपने ये कर लिया, ये निकालना है आपको। उसके लिए करना क्या, सिंपली क्या करना है, P2 P3 P4 Pn दे आर गिवन, ये वैल्यू गिवन है। पावर फ्लो की जो इक्वेशन है, P2 P3 की जो इक्वेशन है, उसमें नॉन वैल्यू और एज्यूम्ड वैल्यू की को रखने के बाद में जो P2 0 P3 0 ये आया, उसको यहाँ रखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऑलरेडी निकालूंगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4। उसको जो एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 था उसमें ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट इटरेटेड वैल्यू, देन इन द 2-3 इटरेशन द फाइनल वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 विल कम। इट इज पॉइंट क्लियर। नाउ इट इज सिंपलर देन गॉस सीडल से भी ज्यादा सिंपल ये हो गया, दिस इज वेरी सिंपल। तो नाउ ये तो हो गया P के बारे में। नाउ सम ऑफ द बसेस आर PQ बसेस। तो PQ जो PQ बसेस है उसमें क्या निकालना होता है, वोल्टेजेस निकालना होता है। मींस दिस इक्वेशन वोल्टेज निकालना होता है। इसका मतलब क्या है, ये वाली इक्वेशन जो हमारी है, ये दिस इज द, दो इक्वेशन था ना, ये दो इक्वेशन था, Qm+1 to this, and here voltage Vm1 Vm2 Vm3 like this. One more column will be there. Now as I told, इसके फॉर्मूला भी निकालने की जरूरत नहीं है, दे आर सेम एज आई टोल्ड, HIP इक्वल टू LIP। जो HIP का फॉर्मूला तो वो LIP का फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला भी वही है, तो इसका भी फॉर्मूला सेम है। तो इन द सेम फॉर्मूला जैसे इसमें रखा था ऐसे ही इसमें, केवल क्या है, नंबरिंग चेंज हो गई है। उसमें 2 3 4 था, इसमें m+1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सेम फॉर्मूला, इफ यू अप्लाई दिस विल कम। Similarly, as we did earlier, ये voltages Vm+1 take common, can be divided here. Vm2 take common, can be divided here. Vn can be taken, can be divided here, and this will come. जैसे उसमें आया था सेम इसमें आएगा। This is again identity matrix. तो ये बन गया। Now what is this? ये कैसे निकालेंगे? ये भी वहीं से y बस से निकल रहा है। फर्क क्या है, जो वो ससेप्टेंस मैट्रिक्स था, जो आपका ससेप्टेंस मैट्रिक्स था,
उसमें P और डेल्टा के बीच में जो सब्सटेंस मैट्रिक्स था दैट इज कॉल्ड द B डैश। B डैश सब्सटेंस मैट्रिक्स है, ये भी सब्सटेंस मैट्रिक्स है, इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए उसका नाम रख दिया B डैश, इसका B डबल डैश। फर्क क्या दोनों में? B डैश निकालने के लिए क्या किया था? B डैश निकालने के लिए क्या किया था? पता ना, अभी जस्ट बताया था ना। B डैश कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड आउट B डैश फ्रॉम द बाइबस। हाँ भाई, हाउ टू फाइंड आउट। जल्दी स्पीकर बोलिए, माइक लेगा। तो हाउ टू फाइंड आउट, फाइंड आउट जलेगा, बोला लेगा। हाउ टू फाइंड आउट B डैश फ्रॉम द बाइबस। बता भाई। यस अंकित, हाउ टू फाइंड आउट खड़ो जा, B डैश फ्रॉम बाइबस। सर जो दो पार्ट होते हैं वाई बस के, उसमें से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जब हट जाती है तो वो बी बस हो जाती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दें, उसमें रियल पार्ट भी हटा दें। कहाँ से आ रहा है बना रहे ओके, नाउ वो आपको पता लग गया B डैश क्या है। अब सेम चीज ये देखिए, ये क्या है? B डबल डैश। फर्क क्या है? उसमें तो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट हटाया था, इसमें लिसन जितनी क्यू बसेस हैं, सपोज करिए 2 to m आर द PB बसेस, तो उसके बाद में m+1 से लेके एंड तक आपकी PQ बसेस हैं। तो जो आपका बाइबस था, बाइबस में m+1 से लेके n, फर्स्ट से लेके m तक सारी रो, फर्स्ट से लेके m तक सारी कॉलम हटाने हैं। और अगर मान लो इंटर मिक्सिंग है, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग की PB बस और PQ बस, तो जो PQ बसेस है, PQ बसेस है वो वाली सब्सटेंस यहाँ रखनी है। ओके, देन इट बिकम B डैश। इसको तो सिंपली देखिए, इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट द वोल्टेज Vm+1 Vm+2, ये वाई से निकाल लिया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको Vm+1 Vm2 Vm3 आ जाएगा। दैट विल बी दी चेंज इन वैल्यू, error in that, adding in the assumed value we will get the first iterated value of the voltages and repeat it 2-3 times we can get the voltages। सर दोबारा बता दो वही जो आप बता रहे थे। माइक ले। यस सर जो अभी आपने बताया ना वो एक बार फिर बता दो, तो समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं है? यस प्लीज लिसन। देखिए, दिस इज द बाइबस, ठीक है नहीं? ये हमारी बाइबस है। बाइबस में B डैश निकालने के लिए हमने इस बाइबस का ये बाइबस को हम ऐसे लिख सकते हैं, कंडक्टेंस ससेप्टेंस, कंडक्टेंस ससेप्टेंस। इसमें कोई डिफरेंस है? इसमें ऐसा, ये फर्स्ट रो हटा दी, फर्स्ट कॉलम हटा दिया, ये बच गया। इसमें ये G2 3 कंडक्टेंस हटा दिया तो ये बच गया, उसका J पार्ट हटा दिया तो आपका B डैश बच गया। अब नाउ हमने पहले नॉर्मली क्या एज्यूम किया था, फर्स्ट बस इज द स्लैक बस, 2 to m आर द PB बसेस एंड m+1 to n आर द PQ बसेस। ठीक है, तो m+1 to n मतलब m+1 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, m तक तो PB बसेस था, तो इससे ऊपर की मतलब फर्स्ट से लेके m तक की सारी रो हटा दिया, सारी कॉलम हटा दिया, ये बच गया। इसमें कंडक्टर से हटा दिया और J हटा दिया तो ये बच गया, तो ये बच गया। दिस इज ए B डैश। ओके, B डबल डैश, इट इज ए B डबल डैश। इन केस नॉर्मली हमने जो एज्यूम किया है 2 to m आर PB बसेस एंड m+1 to n आर द PQ बसेस। अगर आपने जरूरी नहीं ऐसा ही एज्यूम किया हो, एज्यूमशन मान लो डिफरेंट कर लिया हो कि सेकंड बस इज द PB बस, थर्ड इज PQ, देन फोर्थ इज PB, फिर फिफ्थ इज PQ, अगर इस तरह का एज्यूमशन कर रखा है तो
कहने का मतलब यह है जो पी क्यू बसेस हैं, लिसन अगेन, जो पी क्यू बसेस हैं, सपोज ये पी क्यू बस और ये पी क्यू बसेस है, तो ये वाली रो रह जाएगी, ये रह जाएगी, बकाया हट जाएंगी, ये रो रह जाएंगी और इसी तरह के कॉलम रह जाएंगे, तो आपकी बच जाएगी वो बी डबल डैश होगा। इज देयर एनी क्वेश्चन इनटू दिस? इन दिस वे जब आपकी दो इक्वेशन, वो जो इक्वेशन था, देखिए ये जो इक्वेशन था, अगेन लिसन, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन शॉर्ट, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हमने ऐसे लिखा डेल पी बाई वी बी डैश बी। इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर कॉलम वेक्टर है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली इसको एक शॉर्ट में लिख दिया डेल क्यू बाई डेल वी बी डबल डैश दिस, ओके, एंड बी डबल डैश हैज के इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई बस। तो यहाँ तक आपको अगर कुछ पूछना हो, दिस वाज द, ये क्या बताया आज आपको, क्या समझाया? इट वाज द फास्ट डिकपल्ड न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड ही था, इसको हमने एक तो डिकपलिंग कर दिया, पी का केवल डेल्टा के साथ कपलिंग रहने दिया, पी का डिकपलिंग किसके साथ कर दिया, वोल्टेज के साथ, और क्यू का डिकपलिंग डेल्टा के साथ, डिकपलिंग कर दिया, तो ये हो गया डिकपल्ड न्यूटन रैप्सन मेथड। फिर कुछ एज्यूम कर लिया, डेल्टा इज स्मॉल, फिर क्या बनेगा, फास्ट डिकपल्ड बनेगा। सो दिस वाज द फास्ट डिकपल्ड न्यूटन रैप्सन मेथड, ओके। इज देयर एनी क्वेश्चन इनटू दिस? नाउ अगेन, अगर आप इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, देखिए पहले आपने क्या पढ़ा, गॉस सीडल मेथड, फिर आपने न्यूटन रैप्सन मेथड, फिर कुछ कंप्रोमाइज के साथ फास्ट डिकपल्ड। इसको भी आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कितना सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, ये डिपेंड करेगा किस पर्पज के लिए आप स्टडी कर रहे हैं। आपका जो एनालिसिस है, स्टेबिलिटी एनालिसिस, अगर आप स्टेबिलिटी के लिए करना चाहते हैं तो ये पर्पज होगा, अगर आप सपोज करिए इकोनॉमिक डिस्पैच के लिए करना चाहते हैं तो आपका ये पर्पज, लॉसेस निकालना है तो किस पर्पज के लिए आपने स्टडी की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आप पावर फ्लो एनालिसिस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज वी वांट टू स्टडी दिस फॉर द पर्पज ऑफ स्टेबिलिटी, नॉट द लॉसेस। हमें लॉसेस से कंसर्न नहीं है, अगर हम चाहते सिस्टम, क्योंकि सिस्टम स्टेबल रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इफ सिस्टम इज नॉट स्टेबल देन इट कैन नॉट ऑपरेट, ठीक है। जब स्टेबल ही नहीं है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल और ऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, स्टेबल और ऑपरेशन में क्या क्या डिफरेंस है? हाँ भाई आप बताओ। यस आप बताओ। नेक्स्ट कोई पीछे होना कहाँ है? जैसा स्टेबल एंड ऑपरेशन, जैसा आप कहें आप स्टेबल हो, जैसे ऑपरेशन का मतलब क्या, आप बैठे हुए हो, यू आर इंटरेक्टिंग, यू आर वर्किंग, काम कर रहे हो ना, ये इट इज द ऑपरेशन कंडीशन। स्टेबल हो, स्टेबल है या नहीं है, इस बात का क्या मतलब होता है? नहीं। तो लॉसेस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है, स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। यस सर। सुन एक मिनट, नाउ प्लीज, तो अगर हमें उस टाइप की एनालिसिस करनी है तो जरूरी स्टेबिलिटी एनालिसिस करना है, तो जरूरी नहीं है हमें न्यूटन रैप्सन मेथड लगाना है, वी कैन अप्लाई द सिंप्लीफाइड मेथड। तो हम फर्दर, प्लीज लिसन, फर्दर वी कैन सिंप्लीफाई द पावर फ्लो एनालिसिस। अब जो ये था आपका, देखिए P2 P3 P4 डेल्टा, ये तो ये इक्वेशन था। इफ वी कंसीडर कि वोल्टेजेस आर नॉर्मली कांस्टेंट, वोल्टेज 1 पर यूनिट है, so Q is not much important in the stability analysis. Stability analysis, active power is much important. तो उस केस में if we assume now, जो पावर की ये डेल P2 क्या है, what is डेल P2? P2 minus P2 0, याद है कि नहीं याद है? P2 minus P2 0, P2 क्या था? क्या था P2? पकड़ा दे भाई, पीछे पकड़ा दे। और P2 0 ये रहा, P2 0 ये रहा। Q
P2 was the known value of the power at bus number 2. बस नंबर 2 पे कितनी पावर इंजेक्ट हो रही थी वो है P2 और P2 जीरो वो क्या है? P2 जीरो क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पावर एट बस नंबर 2 थ्रू इक्वेशन से जो हमने कैलकुलेट किया उन दोनों का डिफरेंस है ये। तो यस किसी पे आप बैठो। इफ P2 जो इक्वेशन है इफ बी कंसीडर although P2 and Q you have seen these are non-linear equation non-linear equation है but for the small range क्योंकि जब हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पावर चेंज नहीं नॉर्मल रेंज में तो उस केस में बी कंसीडर P2 एज ए लीनियर तो if we consider this as a linear P2 and delta 2 this equation will be converted simply like this। अब देखिए अब आपको इटरेशन करने की भी जरूरत नहीं है आप उसमें बार बार इटरेशन कर देते हैं ना मींस देयर कैन बी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन P2 and delta 2। आपको अगर हर एक बस का इंजेक्टेड पावर गिवन है बस नंबर 2 3 4 इतना पावर दे रहा है पावर इंजेक्ट हो रही है और ये बाई बस आपको मालूम ही है तो यू कैन कैलकुलेट द डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4। तो दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड द डीसी लोड फ्लो। डीसी लोड फ्लो क्यों कहते हैं? इट इज जस्ट लाइक वी कैन सॉल्व इट एज वी सॉल्व द डीसी सर्किट। डीसी सर्किट को जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डीसी लोड फ्लो। ओके एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? कोई क्वेश्चन है? तो दिस यूनिट इज ओवर यूनिट नंबर 1 इज ओवर नेक्स्ट यूनिट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। तो इस यूनिट में शुरू से लेके एंड तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो देन नो क्वेश्चन विल बी एंटरटेन रिगार्डिंग दिस यूनिट इन द व्हेन वी स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट। ठीक है जब अगला यूनिट पढ़ाएंगे तो इसके बारे में आप कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं मैं आपसे पूछ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसकी जरूरत वहाँ पड़े हो सकता है जो इसमें मैंने पढ़ाया है तो जब मैं पढ़ा रहा हूँगा जैसे सपोज करिए लोड फ्रीक्वेंसी पढ़ाना उसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है तो मैं तो पूछ सकता हूँ आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपको ये आता है लेकिन ये नहीं आप वो मुझे एक्सप्लेन करो वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है तो इसलिए आप इसमें इस यूनिट में जो कुछ भी पूछना अभी पूछ सकते हैं और नहीं पूछना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर जो भी लेक्चर्स हैं उसको इस यूनिट्स के रिलेटेड में जो चैप्टर है जो टॉपिक है वो आप सुन सकते हैं। ठीक है जो चैनल पे जो आपके लेक्चर्स है दैट कंटेन्स द in much more detail than whatever described here। जो यहाँ डिस्क्राइब किया है वो आपके लेवल तक का ही बताया उसमें और भी डिटेल में समझाया क्योंकि वो लेक्चर है कुछ एमटेक लेवल के भी लेक्चर उसमें पढ़े हैं तो आप अपने और डीप में जाना चाहें तो सारे लेक्चर सुन लें और नहीं तो आप रिलेवेंट लेक्चर सुन लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। और ठीक है जो मैंने ये जो 10-12 लेक्चर लिए हैं वो आप धीमे धीमे करके आपका उसमें नेक्स्ट पावर सिस्टम 2 के नाम से ऐड करोगे। Any question? No, sir. Thank you very much.